Namaste. Sat Sri Akal. Shalom. Kem cho? Majama. Hello NMIMS. Today I Harshita Bhatia And I am Isha Chandravanshi. and we are here to host a podcast with one and only Major General Raj Mehta. He don't need any introduction because He is very well known and we are extremely honored to host you today, sir. Thank you, ma'am. on my first encounter with him, when I had a conversation with him on a call, he said that he is one of the biggest failure. And I want to start with this question: that why do you feel that you are one of the biggest failure? Ma'am, it's a complicated question. At the same time, it is very simple. The complication is because of the fact that people feel कि आप कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं. अगर आप एक जनरल हैं और आपने लगभग 40 साल की नौकरी की है तो जाहिर बात है कि आप अपनी तारीफ़ चाहते हैं, इसलिए आप अपने आप को घटा रहे हो. पर असलियत में अगर आप देखें तो गौतम बुद्ध ने 5th सेंचुरी BC में और उसके बाद विवेकानंदा ने जब ये गए थे शिकागो फॉर द वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ रिलीजन्स, इन्होंने और इनके बाद महात्मा गांधी ने एक ही सच्चाई की बात की थी कि सक्सेस की बुनियाद एक्चुअली फेलियर है. You cannot really be successful in life till you have failed, and failed in a manner that you could well have almost collapsed or crashed or sort of zonked out, so to say. So जब मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं फेलियर था और फेलियर हूँ और सीखता रहूँगा, actually it is a positive stroke, ma'am. It identifies me with you. I mean, I am 76 going on 77. You are very young kid. Ladies के साथ किसी का दिमाग ख़राब हो तो वो एज की बात करेगा. आप लोग बहुत यंग हो और कितनी अच्छी बात है कि एक बुज़ुर्ग इंसान जो आपका ग्रैंडपा हो सकता है या उससे भी ज़्यादा उम्र वाला, आपसे इस बात पे रिलेट कर रहा है कि फेलियर मैंने ज़िंदगी भर किया है और आपने करना शुरू किया है, और ये हमें बाइंड करता है, एक कमिटमेंट मांगता है कि फेलियर के बाद उसकी परली साइड, ऑब्वियस साइड जीत है ना. जैसे कि फिल्मों में बोलते हैं हार के आगे जीत है तो फिल्मी लाइन बट है भी सच. तो मेरा संक्षेप में सवाल यही है कि फेलियर सक्सेस की बुनियाद होती ही है मैम, और उसको अगर हम इज्जत दें तो कितनी अच्छी बात है. बिल्कुल बिल्कुल सर. Sir, to add to that, there is a disparity between the generations, that your generation and our generation, and you've beautifully cemented the connection between entire generations across. Sir, building on the topic about women, sir, I have been personally very, very impressed about how you treat women. Sir, I just want to know when it started. What struck you that Devi hai, women are goddess. What was that one moment? मैम वन मोमेंट तो नहीं था, बिकॉज 76 साल की ज़िंदगी को टेलीस्कोप करके एक मोमेंट में शायद अच्छे खासों के लिए मुश्किल होगा. पर मैं 2-3 आपको पहलू बताना चाहता हूँ which I think are relevant and apt. And one of them goes back to a little bit of history, ma'am. I say it with a certain amount of pride that I am more or less self-educated, in the sense that I've always felt an urge. Earlier, when I was in school, I was a dull student, ma'am. I was 3rd division. During my time, we had senior Cambridge, which was equivalent to today's standard 11. And I passed with a 3rd division, which wasn't very good. And subsequently, I was also average, till one day I realized that being average was not getting a certificate in life, ma'am. But if you were mediocre and you were average and you had no ambition to drive you further, then possibly you were going wrong. And I'd be very honest, the women who brought about a change in my outlook were firstly my mother. She was a very strong lady, ma'am. Followed by my wife, because when she came into my life, she was an achiever. I was ordinary, ma'am. And एक तरीके से we
sort of fell in love, ma'am. And it's now been 53 years, we continue to be in that state of happiness. And within this period, she's taught me that being excellent could also be routine. You don't have to talk about it. But it could so happen that you program yourself so well with discipline, ma'am. There's no other way you can program yourself. The richest men in the world have worked very hard to be where they are. Let's take the example of your director. He is a multi-pronged, multi-educated, multi-experienced man throughout the world. And what he says and conveys to you in the brief chat I've had with him for this occasion is that he's invested in himself, ma'am. And that actually implies a huge amount of hard work. So if he's very good in, finance, I think he's an MBA in finance. And he studied in New York, he studied in London, he's been to Spain, he's been everywhere. It means he's visited himself very often, ma'am. Kindly note, whom has he visited? He's visited himself. Most of us are very shy of talking to each other, ma'am. I mean, we talk a lot to each other. Women talk a lot to their besties. Men do also have friends. I don't know whether they call them besties, but they have friends, all right. The point is, how often do you talk to yourself? Correct. So, when women pass this message to you, men don't mind. When fathers pass messages to sons mind. But when a mother talks to a son or a daughter, it's a woman conveying value. You tend to remember that. Sir, can we... Does that answer your question Definitely, in a way? Sir. Sir, excellence is definitely not an act but an habit. Sir, can we... How wonderfully said. It's a habit. It should be a habit. Yes, sir, definitely. Sir, आपने एक पंक्ति बोली थी हरिवंश राय बच्चन जी की. Can we recall that एक बार? Of course, ma'am. इन्होंने बहुत साल पहले, जब अमिताभ बच्चन इनके बेटे हैं और इनका एक दूसरा भी बेटा था, उसका नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, जो भी था वो, इन्होंने एक कहानी लिखी थी अपने लिए, मुल्क के लिए, इंतज़ामिया के लिए, दुनिया के लिए, और लोगों ने उसको एक रोमांटिक टोन या रोमांटिक टच देकर उसको एक फिल्मी अंदाज में बोलना शुरू कर दिया. वो इनकी बेहतरीन स्टोरी थी, नरेशन थी. मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो ये होता, तुम होती तो वो होता. लोगों को एक तरीके से सिलसिले की झलक आ जाती है सामने, रोमांसिंग कपल्स आ जाते हैं सामने, और उस कुटुंब का जो म्यूज़िक है, फिज़िकल म्यूज़िक एंड मेंटल म्यूज़िक वगैरह वगैरह, वो सब एनवायरनमेंट में फैलाता है मैसेज रोमांस का. असलियत में तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैम. इतने काबिल पोएट थे हरिवंश राय बच्चन, वो तो शायद अपने बारे में ही बात कर रहे थे. मैं और मेरी तन्हाई, आई एंड मी, आई एंड माई सेल्फ, अक्सर ये बातें करते हैं. वी चैट टू ईच अदर एंड से, तुम होती तो ये होता. तुम इज अचीवमेंट, सक्सेस, रीचिंग अप देयर, हैविंग एन एंड स्टेट इन माइंड, हैविंग अ गोल इन माइंड. तुम होती तो ये होता, तुम होती तो वो होता. Actually, it has paradoxical meanings, ma'am. Tum could be a beloved, could be a friend, could be mum, could be dad, could be a friend, could be a bestie, could be competition, could be anything. So what has happened? You have reached into a continent where people rarely reach. That competition is you. That continent is you. That commitment is you. अगर आप इतनी दूर पहुंच चुके हैं तो आप बहुत दूर पहुंच चुके हैं. और अगर आप इतनी दूर नहीं पहुंचे और कॉपी पेस्ट या मीडियोक्रिटी में थ्राइव कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट्स पे थ्राइव कर रहे हैं, जान पहचान पे थ्राइव कर रहे हैं, तो आप तो बड़े घटिया इंसान निकले, मीडियोकर निकले. कब तक चलोगे? जब तक सिक्का चलेगा. सिक्का तो एक दिन में ख़राब हो जाता है. चमड़े के सिक्के निकालोगे तो यही होने वाला है. अब आपको तुगलक बनने की ज़रूरत नहीं है. आप अपने आप में माहिरता शामिल करो, हासिल करो.
अपने आप को आप काबू करो, और अपने आप को काबू कर लिया तो इससे आगे बुद्धा ने क्या बोला है, क्राइस्ट ने क्या बोला है, अल्लाह ताला ने क्या बोला है कि आप दुनिया हैं, रब आप हैं, आप में रब है, आप रब हैं। अगर ये सब बातें सच हैं तो आप अपने आप को एक नए लेवल पर ले जाओ। मेरी तो यही राय है। बिल्कुल सर। जी सर। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप 39 इयर्स तक आर्मी में सर्व करे हैं, एंड फर्स्टली आई थॉट दैट यू आर फ्रॉम एनडीए, बट यू मेंशन दैट यू आर नॉट एबल टू क्लियर एनडीए एग्जाम्स। तो आप मतलब क्या बताना चाहेंगे लोगों को कि इवन इफ दे आर नॉट एबल टू क्रैक एनी एग्जाम्स, इज इट पॉसिबल फॉर देम टू रीच दैट पर्टिकुलर पोजिशन दे आर थ्राइविंग फॉर? क्या बेहतरीन सवाल है। आपसे उम्मीद यही थी कि आप तीखा सवाल पूछेंगी और जवाब देने में मेरे को सोचना पड़ेगा। मैम, मेरा जो ख़ानदान है, हम 6 बच्चे थे, जिसमें 4 फौज में गए, एक सिविल लाइन में चला गया, बहुत अच्छा उसने किया, और एक हमारी बहन थी जो दुनिया की सबसे बेहतर बहन थी मैम। ये ऊंचे दर्जे की डॉक्टर बन गई और बड़ी हिम्मत करके आउट ऑफ कास्ट मैरिज कर ली, जिसमें हर एक भाई ने जाकर इनको और इनके शौहर को जफ्फी लगा लिया। वो तो मैं पॉइंट से डाइग्रेस कर रहा हूँ। आपका पॉइंट ये था कि आप एनडीए में नहीं पास हो सके, तो आप इतने 39 ईयर्स और जनरल के रैंक पर कैसे गए? कुछ ना कुछ तो किया होगा। मैम, एनडीए में मैं बैठा ही नहीं। उसका कारण ये था कि अगर कोई मेरा जानी दुश्मन था, वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स था मैम। मैं ज़ीरो से भी इन चीज़ों में गिरा हुआ था। तो जब मैं सीने कैम्ब्रिज एग्जामिनेशन में बैठा, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज रन करती है, इंडिया में ओ लेवल के एग्जामिनेशन रन करती है, मेरे पास चॉइस थी इम्तिहानों से पहले कि मैं आर्ट्स स्ट्रीम ले लूँ, क्योंकि साइंस में मैं नालायक था, अंग्रेज़ी में मैं ठीक था, बाकी सब्जेक्ट्स में मैं ठीक था। तो मैंने चूज़ कर लिया साइकोलॉजी, सोशल साइंसेस, इंग्लिश, हिस्ट्री वगैरह वगैरह, और इनको करके मसाही तो पंजाबी वर्ड मीन्स जस्ट टू टच, 3rd डिवीजन में पास हो गया। प्रॉब्लम ये है दैट फॉर एनडीए यू रिक्वायर टू बी अ साइंस स्कॉलर मैम। माई ब्रदर्स वर वेरी गुड इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। आई वॉज अ डम्ब हेड, नालायक। मेरे में ये नॉलेज नहीं थी। तो मेरे में गुस्सा भी था मैम, जेलसी भी थी। भाइयों में जेलसी तो होती है, बहनों से कम होती है, भाइयों से ज़्यादा होती है। मेरे दिमाग में ख्याल था कि एक दिन मैं भी फ़ौज की वर्दी तो ज़रूर पहनूंगा और नेशनल डिफेंस एकेडमी में इंस्ट्रक्टर बन के जाऊँगा। भाइयों ने हंसा, कहा था नालायक हो तुम तो लगता नहीं है तुम ऐसे इतनी दूर जाओगे। पर मैं गया मैम। अंदर जलन थी, अंदर गुस्सा था, अंदर ख्वाहिश थी, अंदर प्यार भी था कि भाइयों से जीतना नहीं है, मैंने भाइयों के साथ शरीक होना है। तो मेहनत करके, मुशक्क़त करके मैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में गया मैम, जिसमें आर्ट्स की रिक्वायरमेंट काफ़ी थी। और वहाँ से जाने के बाद बाय अ लॉन्ग रूट आई फाइनली वॉज वन डे पोस्टेड एज एन इंस्ट्रक्टर टू द नेशनल डिफेंस एकेडमी। और जब मैं वहाँ एक बार गया तो भाइयों ने इस बात के ऊपर मेरे से बातचीत करना बंद कर दिया। पहले ही बोलते थे तू कहाँ है, हम कहाँ हैं। उसके बाद जब इन्होंने सोचा कि जहाँ हम पढ़े थे वहाँ ये इंस्ट्रक्टर फैकल्टी की हैसियत में गया है, तब बातचीत कम हो गई। तो इसका सारांश में संक्षेप में मैसेज यही है मैम कि जो आप चाहते हो उसके लिए मेहनत करो। मीठा होकर, चापलूसी कर कर कहीं नहीं जाने वाले आप। हाथ पैर तोड़ो, मेहनत करो, मुशक्क़त करो और जीतोगे। ये बात है। सर, आपकी बहुत बातें सुहा गई। सर, हमने आपके डेटा में पढ़ा था दैट यू वर आस्क्ड टू लीड यूएन फोर्सेस। सर, कुछ उसके बारे में बताएंगे? जी मैम, मैं ब्रिगेडियर के रैंक का था और मैं आर्मी हेडक्वार्टर्स में पोस्टेड था। मिलिट्री ऑपरेशंस में मेरे को जिम्मेवारियां मिली हुई थी, वो काफ़ी गंभीर जिम्मेवारियां थी मैम। हमारी बहुत बड़ी फ़ौज है
और पूरे हिंदुस्तान में एक सर्टेन लेवल पर आकर कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं खुलेआम बात नहीं कर सकता। हालांकि 17 साल हो गए फ़ौज को छोड़ते हुए, बट फ़ौज का नमक खाया मैम। कुछ बातों का तो मैं जिक्र नहीं करूँगा, बट ऐसी बातें थी जिसमें मेरा रहना ज़रूरी था। उसके बीच में एक इंटरव्यू के लिए मैसेज आया कि हमारा बोट्सवाना एक अफ्रीकन मुल्क है, बड़े डिस्टर्ब्ड हालत में तब था, और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया। इंटरव्यू के लिए गया मैम, और मेरे को बाद में बताया गया कि आपको रिज़र्व की हैसियत में डाला गया। इंटरनेशनल कंपटीशन था, बाकी लोगों के भी, बाकी मुल्कों के लोग जाने से। शायद बाद में जिसको सिलेक्ट किया वो फ्रांस का था मैम, और नंबर 2 में मैं था। तो अगर फ्रांस वाला ना जाता तो शायद मैं चला जाता, बट ये तो ख्याली पुलाव है मैम। असलियत में ये बात है कि मैं रिज़र्व था, और रिज़र्व होने का मेरे को ना तो घमंड था ना तो दुख था, क्योंकि मैं एक और ज़रूरी काम कर रहा था। तो मैंने उसको अपनी लाइफ की स्ट्राइड में ले लिया, रंज नहीं खाया, दुखी नहीं हुआ। लाइफ में हमेशा जीतना मुनासिब नहीं है मैम। कभी कभी आप पीछे रह जाएं तो आप ज़्यादा सबक सीखते हो। हार तो नहीं है, जीत भी नहीं है, तो आपको वो वेरिएशन समझ आ जाती है, द सटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट यू कुड हैव वर्कड हार्डर to reach the number 1 position. My fallback position or my excuse was, जो मैं काम कर रहा हूँ वो भी इम्पॉर्टेंट है। वो सच बात थी, बट पूरा सच नहीं था। अगर विदेश जाने का मौका मिलता तो मैं ज़रूर जाता मैम, ये असलियत है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, हम बस अब आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे कि आप अपनी लाइफ का, क्योंकि आपने इतने साल आर्मी में दिए हैं, तो आप अपनी लाइफ का कोई एक सबसे अमेजिंग इंसिडेंट बताइए जिससे हमें NMIMS के बच्चों को और दुनिया में जो भी, जहाँ पर भी पॉडकास्ट जाए ना, उसको कुछ सीखने को मिले, कुछ ऐसा वो लेकर जाए इस पॉडकास्ट से जो वो अपने साथ ज़िंदगी भर रखे। क्योंकि मेरा जब भी आपके साथ इनकाउंटर हुआ है ना, मैंने आपसे वो चीज़ें सीखी हैं जो मैं अपने साथ ज़िंदगी भर रखूँगी, और मैं चाहती हूँ कि मेरे जो बैचमेट्स हैं, मेरे जो फेलो NMIMS के स्टूडेंट्स हैं, वो भी ये सीखें। आपके ख्यालों की नोबिलिटी, बोथ द यंग लेडीज have been very, very impressive, ma'am. I was actually fearing this interview. These young boys who were behind the camera, the young ladies who were in front of the camera. I was frankly scared at my age and thought, पता नहीं क्या पूछने वाले हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बच्चे हैं, और ऐसा कुछ सवाल पूछ लिया तो मैं गड्ढे में पड़ जाऊंगा। एक्चुअली ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, बिकॉज आप लोग एक नई लेवल की इंटेलिजेंस पे पहुंच चुके हो मैम, जो हमारी उम्र, हमारी एज, हमारी जनरेशन को इज्जत देना चाहिए। बिकॉज एज फादर्स एंड एज ग्रैंडफादर्स वी ऑलवेज होप द नेक्स्ट जनरेशन विल बी बेटर देन अस, एंड व्हेन दे आर बेटर देन अस दे डिजर्व अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट. This allows me to partly make up by not covering the question properly as to why a lady is respected. You'd ask this question, I don't know whether I competently answered it, but there are two reasons for respecting women, ma'am. They require to be respected because they're better than you. Full stop. I speak as a male. And I must give you a background here. I alluded to that, but now let me explain. Ma'am, about 2,500 years ago, maybe 3,000 years ago, there was a lawmaker by the name of Manu. Manu, yes. Manu had written a law treatise which is called Manu Smriti. And Manu Smriti is considered by many to be an exceptional document of law value, practically with almost as much respect as we award to the Constitution of India. My problem lies with the fact that whereas on matters of law it must be very good, when it came to women, I view it as negative and regressive, which means going backward. Because what he said about women was that women are actually useful or fit only for procreation. That means when you want to start a family, you want children, women ought to be there, because without them family cannot be carried forward. But having said that, you should keep away from them. And then he attributed certain tendencies to women which weren't very positive, and I'm much too embarrassed to repeat them in front of you. But what he did say
was rather explicit details about physiology. He spoke about the fact that when a woman is undergoing her menstrual cycle, for those 4 or 5 days, she should be considered as a kind of a social outcast within her own family. So from being in the bedroom, in the drawing room of her home, she would actually be sent toward the rear of the house where the animals were tied up. And the woman was supposed to remain there in isolation for the period that her menstrual cycle was on, without realizing that there would be no men around if there wasn't a menstrual cycle. I mean, it's so amazing that one could be so reprehensible in his thinking as to consider women being lesser than a man in any way. I can't go on and on about the history part of it, but my conviction was, after seeing a very strong mother and a very strong sister, and later on in life, very strong women wherever I went, that actually women were equal but different. Please note that I haven't said they are superior. I don't think they would want to be identified as somebody superior, but most women would be happy in accepting the fact that we are your equals, but we are different. The difference is the physiology part. That is to be celebrated, ma'am. Imagine the worries of a parent whose child is not menstruating. You have to be a parent to understand that it breaks your family. If there is an issue with reference to reproductive systems in a lady, there's tension all around. So, I mean, this is something to be celebrated, something to be respected, something to be worshipped. It is nothing to be reviled and ridiculed. This is so far as this aspect is concerned. Now, let's get back to your earlier point, other point, which was one experience that I remember for a long time. Let me quote the example of Honorary Captain Bana Singh. You would definitely be aware of the fact that he is one of the brave hearts of the Indian Army alive, who was awarded a Paramveer Chakra, which is equivalent to a Victoria Cross. It was awarded to him in Siachen for capturing a Pakistani post, which after its capture was named after him, which is a very rare honor, ma'am. It's now called Bana Post. It's at a very small height of 21,450 feet. Not a small height. Ma'am, it is an astonishing height. Situated around 18 or 19,000. Siachen height actually starts at about 16,000, ma'am. Yes. And this is the highest point, 21,450. Civilians are not allowed to go there. Now they are allowed, ma'am. They've been allowed to go up to the base camp. The base camp is named after a great mountaineer, soldier mountaineer called Kumar. That's called Kumar Post. Okay. And over the last couple of months, organized trips have been allowed after a three-month tough camp. Okay. They are checked out for their physical condition, mental condition, and then they are allowed to visit Kumar. Kumar is at about 16,000 feet, ma'am. Okay. But getting back to Bana Singh, why Bana Singh has made a huge impact on me is that firstly in 1987, I think it was in the month of April or May, probably May. I may be wrong about the dates, but roughly this period of May, June 1987, he scaled up to this post, ma'am, which had become a Pakistani post, and it was causing mayhem, merry hell, a lot of casualties to us. And there was no choice other than to capture this post. To cut a long story short, all he had to do was to climb a 1,500 feet, 90-degree vertical snow wall in order to access this peak. Imagine, ma'am. Earlier people had tried, they had died there. There were the bodies of 9 soldiers hanging on these ropes trying to climb up, whom the Pakistanis had shot. And they were their soldiers. तो वो गुस्सा था, वो नाराज़गी थी, वो पाकिस्तान के खिलाफ एक तरीके का एंग्स्ट था कि हमने इसका बदला क्या लेना है, हमने फतेह करनी है उन लोगों की जिन्होंने हमारा ये नुकसान किया. तो एक अंधेरी रात को वाहे गुरु का नाम लेकर, अल्लाह ताला का नाम लेकर, ईसा मसीह सबका नाम लेकर के ये चढ़े
दिन को अंधेरा हो गया था जब ये चढ़े मैम। और चढ़ते हुए इनके साथ एक अफसर थे, बड़े बहादुर अफसर थे, जो मेरे खुद बड़े अच्छे दोस्त यार थे, बाद में ब्रिगेडियर बने, मेजर वीरेंद्र सिंह। वो टीम को लीड कर रहे थे और उनके पीछे बाना सिंह थे। जब वो ऊपर पहुँचे तो उनको फेफड़े में गोली लग गई, स्प्लिंटर लग गया, जिसकी वजह से एकदम हेलीकॉप्टर बुला करके उनको भेजना पड़ा। और बाना सिंह को मान मिला, इज़्ज़त मिली कि अब तुम जाओ, हमलावर बनो और इस पोस्ट पर फतेह करो। तो किस तरीके से वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने हमला किया, फतेह की, ये बहादुरी की एक अजीब दास्तां है 21,450 फुट पर, जो पहले ना हुई, शायद आइंदा भी नहीं होगी। मेरा इनके साथ रिश्ता इसलिए गहरा है क्योंकि बड़े हम्बल इंसान हैं। अभी कल परसों भी मेरी बातचीत हुई कि आपको चंडीगढ़ में बुलाया गया है। उन्होंने बोला है जनरल साहब आप बता रहे हो तो मेरे लिए वही काफ़ी है, बाकी कोई बुलाए ना बुलाए मैं ज़रूर आऊँगा। ये प्यार का रीज़न एक ये है मैम कि जब कारगिल की लड़ाई चल रही थी, मैं ब्रिगेड कमांडर था कश्मीर में, और जितनी भी डेड बॉडी लाशें जाती थी हमारे सिपाहियों की, उनको साउथ कश्मीर के थ्रू जाना ही था। वहाँ पर मैं कमांड कर रहा था। तो बाना साहब और मैं दोनों हर एक लाश को जाने से पहले उनको आखिरी सलामी देते थे। अब बाना साहब और मेरा ये रिश्ता है कि उन 2 महीनों में हमने ये बहुत बार किया और बहादुरी की असलियत देखी अपने सामने। आपको मालूम है कारगिल की लड़ाई में 427 पीपल डाइड मैम, of which 26 were officers and around 1,500 people got wounded. And most of these casualties went through us because हम अनंतनाग में थे, हम खानाबल में थे और हमारे से थ्रू ही होकर के रास्ता जाता था कश्मीर वैली से बाहर। तो इन दोनों को एक परम वीर चक्र के सामने और उनके साथ मिलकर आप सलामी दें तो ज़िंदगी भर तो आपको ये बहादुरी की दास्तां याद रहेगी। और ये भी याद रहेगा कि एक JCO का जूनियर कमीशन ऑफिसर और मैं एक जनरल, उस टाइम मैं ब्रिगेडियर था, हमारा धर्म एक ही था, नाम, नमक, निशान, ऑनर, इंटेग्रिटी, फ्लैग, परचम हिंदुस्तान का। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भारत कहना चाहो भारत कहो, इंडिया कहना चाहो इंडिया कहो, मुल्क तो वही है। नाम हज़ारों हैं, हम 5,000 साल पुरानी परंपरा है मैम। तो नाम के ऊपर मैं लड़ाई करने को तैयार नहीं हूँ। मैं तो ये कहूँगा जो भी होगा सो होगा। धर्म मेरा हिंदू, सिख, ईसाई वगैरह वगैरह का नहीं है, मेरा धर्म एक है, नाम, नमक, निशान। थैंक यू। Thank you so much, sir. It was a very, very lovely interaction with you. And मतलब मुझे नहीं लगता कि आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड इंसान अब तक हमारे पॉडकास्ट के अंदर हमें ज्वाइन करे हैं। एंड मैं श्योर हूँ कि हमारे NMIMS के जितने भी बच्चे हैं वो जब सुनेंगे ये तो कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे, वो बहुत इंस्पायर होंगे आपको सुन के। इस संस्था में आकर मेरे को बहुत हौसला मिला है मैम। बच्चों को इतनी ज़बरदस्त लेवल पर काम करते देखकर मेरे को ऐसा लगा है कि आने वाले हिंदुस्तान का एक ट्रेलर मैंने देख लिया है और मैं बहुत से ज़्यादा खुश हूँ। बिल्कुल। एक और चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगी इस पॉडकास्ट के अंदर, आई डोंट नो ये कौन से नंबर पे जाएगा, बट वी हैव अ प्रोड्यूसर्स हियर जो इतनी मेहनत करते हैं। ये दे सिंगल हैंडेडली रिकॉर्डेड, edited, and they'll be posting it soon. They are creating a series and they'll be posting it soon. So guys, we can. इनका हौसला देखकर मैं तो हैरान हूँ, बहुत हैरान हूँ। मेरे ख्याल आप लोग सामने आए बेटे, नहीं ज़रूरी है, नहीं हमने दिखाना है एक बार। पर जो YouTube में लोग बैठे हैं हज़ारों की तादाद में, वो नहीं जानते होंगे शायद। आपकी संस्था के लोग तो जानते होंगे। आप ज़रूर सामने आएँ और मैम आप इनके बारे में कुछ कहें, आप दोनों लेडीज़ कुछ कहें। We have Aditya Sachdeva with us. He is BBA third year student from NMIMS Indore, and Manidev Nathani, who is also a BBA third year student, finance from NMIMS Indore. And they are the producers of this podcast. They single-handedly handle it, edit it, post it for all of you, for all of us. Thank you so much, guys. God bless you. Keep it up. Thank you so much for joining us on this adventurous ride with Sir. There are many more episodes upcoming. Please stay tuned. Bye-bye. Thank you. God bless you. Thank you. Bye.